ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸਟੈਡ ਪੇਇੰਗ ਆਫ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ। Income tax paid during the financial year in installments instead of paying whole tax at the end। ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ। ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਟੇਕਨ, ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਵੰਸ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10,000 ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10,000 ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ 10,000 ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ 10,000 ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਲਪਸ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਅਵੋਇਡ ਹਿਊਜ ਪੇਮੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਈਅਰ ਐਂਡ। ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫਟਰ TDS। ਆਪਾਂ TDS ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ TDS ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਉਹ 10,000 ਹੈ ਜਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਪੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫਟਰ TDS 10,000 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 10,000 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ TDS ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਭਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ 60+ ਏਜ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 60+ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਪਲ ਹੂ ਐਂਟਾਇਰ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਬਾਈ TDS, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 5,000 ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 5,000 ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ TDS ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇਡ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ PSTCL ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਟਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 100% ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ 4 ਵਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ठीक है। अपना फाइनैंशियल ईयर स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। अप्रैल मई जून ਤੇ 15 जून ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। फिर दूजा क्वार्टर कदों आंदा, एक मिनट मैं स्क्रीन क्लीन कर देनी है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए वो चीज़। देखो मैं कल की क्लास 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि अपने कोल 4 क्वार्टर ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ही 4 इंस्टॉलमेंट्स बनिया। अप्रैल तो शुरू ਹੁੰਦਾ फाइनैंशियल ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। आ देखो हुण आपां 4 बार जमा करवाना है तो आप 3 महीनों के गैप के पहले 3 मंथ्स कितने बनते हैं, अप्रैल मई जून, जून की 15 तरीक को फस्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की 15 तरीक को फस्ट इंस्टॉलमेंट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो फिर इत्थे थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 तरीक को। याद रखना 15 तरीक को ही है सारी, जैन फैब मार्च, मार्च की 15 तरीक को 100% जो एडवांस टैक्स है वो पे हो जाएगा। आई होप तो ये चीज़ क्लीयर है। मैं लॉजिक भी दस दिता, अगर तुम इदा ही याद रखना है तो इदा भी याद रख सकते हो। हर मंथ की 15 तरीक है, 3-3 महीनों के गैप के है, 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च। हुण थोड़ी जी परसेंटेज भी याद रख लो कि 15 जून को 15% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी आप पे करना है। उस तो बाद बची हुई टैक्स लाइबिलिटी का 45% पे करना है। उस तो बाद बची हुई लाइबिलिटी का 75, फिर उस तो बाद वाली का 100% अपना मार्च के विच चला जाएगा, ठीक है। आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। नैक्सट देखते हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट। कई बार इदा भी क्वेश्चनस पूछ सकते हो, तो तुसीं ये चीज़ याद रखना घुमा फिरा के, जिदा कोई भी किसी भी पर्सन का नाम लिख के दे सकते हैं कि मुस्कान's सैलरी हैज़ फुल TDS डिडक्टेड आफ्टर TDX टैक्स लाइबिलिटी 0, तो कितना एडवांस टैक्स पे करना पेगा उन्होंने। तो इस तरीके के नाल ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जो टैक्स लाइबिलिटी ही 0 है तो नो एडवांस टैक्स, ना ही वो कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो कोई भी एडवांस टैक्स भी नहीं होएगा। सो इस तरीके के नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर वो इदा भी पूछ सकते थे कि 10,000 बनी वो टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर TDS, तो उन्होंने एडवांस टैक्स पे करना पेगा या नहीं करना पेगा, तो वह उस कैटेगरी के अंदर आ जाती है, क्योंकि उन्हें वो कंडीशन फुलफिल करती है कि 10,000 या 10,000 तो बाद अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है आफ्टर TDS तो उन्होंने एडवांस टैक्स पे करना पेगा। तो इत्थे क्वेश्चन बन जाएगा येस उन्होंने एडवांस टैक्स पे करना ही पेगा। नैक्सट देखो वट इफ एडवांस टैक्स इज़ नॉट पेड ऑन टाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़। देखो मैं हर क्लास के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ा ही ऐड की ताकि थोनू ज़्यादा पढ़ना ना पवे। हुण देखो कहते कि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पे किया, क्योंकि वो तो कंपलशन है साढ़े उत्ते, क्योंकि मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई 10,000, तो 10,000 तो बाद अगर बनती है TDS कटन तो बाद, तो मैं उस ऑब्लीगेशन के अंदर आ कि मैं एडवांस टैक्स पे करना। मान लो अगर मैं एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो मैं सैक्शन 234B और 234C के अंदर इंट्रस्ट ले लाइबल हो जाऊँगी। मतलब मैं इंट्रस्ट पे करना पेगा, एज अ पेनल्टी मैनू इंट्रस्ट पे करना पेगा। हुण आपां देख लैंदे आ कि देखो अगर मैं एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो 234 ओहदे उत्ते मैनू टैक्स लगाएगा। अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स लेट करती, मान लो मैं 15 जून को पे करनी सी ना, तो मैं की 31 जून को पे, तो उत्थे मैनू कितनी पेनल्टी लगेगी, वो मैनू इस सैक्शन के अंदर पेनल्टी लगेगी कि मैं इंस्टॉलमेंट्स ही लेट करती हाँ। 234 के अंदर इंस्टॉलमेंट्स वास्ते है, 234B के अंदर एडवांस टैक्स अगर मैं नहीं पे किया वो वास्ते है। लगना दोनों के केस दे विच इंट्रस्ट ही है, पर ये मैनू एडवांस टैक्स ना पे करन ते ये मैनू इंस्टॉलमेंट्स लेट करन ते, ठीक है। हुण इनू थोड़ा जिहा डिटेल दे विच देख लैंदे आ। देखो मैं दस्सिया 234 है जो वो दसेगा कि इंस्टॉलमेंट्स अगर मैं टाइम ते नहीं पे कीतियां उहदे लई मैं लाइबल हो जाऊँगी, मेरे उत्ते पेनल्टी लगेगी इंट्रस्ट की। हुण वो कितनी लगेगी अंडर दिस सैक्शन इफ एडवांस टैक्स इज़ नॉट पेड ऑन स्कैड्यूल, कि मैं अगर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर ते 15 मार्च अगर मैं उस डेट्स के उत्ते नहीं टैक्स पे किया, ठीक है, या मैं थोड़ा जिहा लेट कर दिता, तो मैनू पेनल्टी लगेगी 1% इंट्रस्ट की, ठीक है। इन्ना ही याद रखना है कि किन्ने % इंट्रस्ट की पेनल्टी लगेगी अगर मैं स्कैड्यूल टाइम के अंदर पेमेंट नहीं की एडवांस टैक्स की 1%। हुण आ जाओ 234B की कहता है कि इस सैक्शन के विच दस्सिया गया है कि अगर तुसी अपना 90% ऑफ टैक्स पेबल बिफोर द एंड ऑफ फाइनैंशियल ईयर नहीं किया,
मतलब की है कि फाइनैंशियल ईयर एंड हो रहा ਤੁਹਾਡਾ मार्च तक अगर तुसी अपनी टैक्स लाइबिलिटी का 90% जमा नहीं करवा दिता एज ए एडवांस टैक्स तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨल्टी पेगी इंटरस्ट की वो भी कितनी पेगी 1% ही पेगी। ठीक है, कितना किस अमाउंट के उत्ते कितना पेगा ये नहीं पूछा जाएगा, जस्ट तुहाडे कोल इन्ना ही पूछा जाना है कि कितने परसेंट की लगेगी और किस सैक्शन के थ्रू लगाई जाएगी। तो तुसी ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुहाडे एग्जाम लिए। नैक्सट आ जाओ, इन्हों दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए है। कल की क्लास के विच आपां कीता सी TDS ते अज आपां कीता एडवांस टैक्स। इन्हों दोनों का डिफरेंस की है, देखो ये है फीचर TDS एडवांस टैक्स। हु पेज TDS कौन पे करेगा? पेयर। ठीक है, जिन्हें पेमेंट करनी है वो कट करके TDS नूं पे करेगा। तो एडवांस कौन पे करेगा? डायरैक्टली जिन्हें टैक्स जो टैक्स पेयर है उन्हें ही वो चीज़ पे करनी है, क्योंकि वो इनकम का ही एडवांस टैक्स होएगा। टाइमिंग वैन पेमेंट इज़ मेड, जो पेमेंट की जाएगी, जो कंसैप्ट दस्या सी कंडीशन पेमेंट या फिर एक्चुअल क्रेडिट रिसीव्ड बाय द रिसिप्टेंट, जिहड़ी भी चीज़ पहला होएगी विच एवर इज़ अर्लीयर उदों आपां पेमेंट कट देनी है। ठीक है, TDS की। तो इत्थे फिक्सड इंस्टॉलमेंट है, मैं तुहानूं दस दिते है 4 बार आपां करना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, दैन 15 मार्च। ठीक है, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स के विच होएगा, फिक्सड है। अप्लाइज TDS अप्लाई होंदा सैलरी कॉन्ट्रैक्टर रेंट एक्सैक्ट्रा, नॉन सैलरी वास्ते भी होंदा, सैलरी वास्ते भी होंदा। और मैं तुहानूं दसता सी अलग अलग फॉर्म होंदे 16 एंड 16A, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो देख लैन। ठीक है, तो ये सिर्फ इनकम टैक्स के उत्ते ही लगता है कि जो थोड़ी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 तो वध हो गई है तो तुसी लाइबल हो जाओगे, कंपलशन हो जाएगी तुहाडे उत्ते, तुसी एडवांस टैक्स पे करना है। नेचर ये टैक्स कलैक्ट करता है इनडायरैक्टली, ये टैक्स कलैक्ट करता है डायरैक्टली बाय टैक्स पेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ां थोड़े एग्जाम लैवल्स वास्ते, एडवांस टैक्स थोनों डायरैक्ट इदा भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट दे के, पे एज यू अर्न सिस्टम केड़ा है, अर्न आना है इत्थे। ठीक है, जिदा जिदा अर्न कर रहे हो उदा उदा पे करी जाओ, वो वाला सिस्टम केड़ा है? एडवांस टैक्स। ठीक है, कंपलसरी टैक्स लाइबिलिटी अगर थोड़ी TDS तो बाद ग्रेटर दैन या इक्वल्स टू 10,000 हो जाएगी तो तुसी एडवांस टैक्स पे करना ही है। 4 इंस्टॉलमेंट्स के विच करते हैं, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। नॉट रिक्वायर्ड इफ थोड़ा टैक्स है वो पूरा कवर हो गया एज TDS, तो कोई भी थोनों टैक्स नहीं लगेगा या कोई भी कंपल्शन नहीं होएगी, तुसी टैक्स है एडवांस विच पे करना है। सीनियर सिटीजनस एग्जाम्प्ट है जे उन्हां दी बिजनेस इनकम नहीं है। लेट पेमेंट वास्ते केड़ा इंटरस्ट लगेगा? 1%। तो सैक्शन केड़े ने? 234B, 234C। 234B एडवांस टैक्स 90% अगर आप नहीं पे किया, 234C अगर मैं स्कैड्यूल टाइम दे विच नहीं पे किया। एडवांस टैक्स इज डायरैक्ट पेमेंट बाय टैक्स पेयर, नॉट डिडक्टेड बाय पेयर। पेयर इनू डिडक्ट नहीं करेगा, ये एडवांस टैक्स है जो डायरैक्टली टैक्स पेयर ही डिपोजिट करवाएगा। सो ये सी लास्ट पेज अज दी अपनी क्लास का। अज की क्लास के आप पूरा कवर कर लिया है एडवांस टैक्स वाला टॉपिक, सारिया इंपॉर्टेंट चीज़ां, कुछ भी नहीं छड्डना। सैक्शनस जेडे टाइम स्कैड्यूल है 4 इंस्टॉलमेंट्स का, वो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन टैक्स पे कर सकता है, कितनी कंडीशन है, कौन नहीं करेगा, ओदी कितनी कंडीशन है, सारिया चीज़ां तुसी अपने दिमाग दे विच रखनियां। आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं वध तों वध शेयर और लाइक ज़रूर करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स, प्लस अपना फीडबैक मैनू ज़रूर दिया करो कमेंट सैक्शन दे विच। मिलांगे नैक्सट टॉपिक दे नाल नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू सो मच।